Okay, let's use this page. If it's not helpful, I will change it. Okay. Okay. Also, I'm sharing this in the chat box. If you want, you can open it at your end as well. Okay. Yeah. All right. Okay. Let's start with emergency access management. Uh, आई थिंक मोनिका मैंने आपको एग्जांपल दिया था इमरजेंसी एक्शन मैनेजमेंट का, राइट? Right. कि सपोज आपने कोई छुट्टी ली है और आपका यू वांट टू गेट इट अप्रूव्ड ऑन द पोर्टल, ऑफिस पोर्टल, बट योर supervisor is not available or manager is not available who will approve it, right? Right. Yeah, so what you do is you contact another manager and he ask for emergency access so that he can approve your leaves. Yes. He gets that access for a short amount of time and during which he approves your leaves. Okay, Mm-hmm. once he approves it and the validity, like let's say default validity period is 2 days. Mm-hmm. Okay, and it Okay. expires. All right. Okay. So after 2 days, he won't be able to approve any leaves Mm-hmm. or any emergency access privileges. Okay. Okay. So this is the work. This is what emergency access is used for. But this was a normal example. Uh, EM is used for more reasons. More reasons. Suppose Mm-hmm. let's say suppose you are in sales. You want Mm-hmm. to check the inventory, but you don't have, of course, because you are from different department, you won't have access to the inventory department. But you want to Okay. check it. Okay. Mm-hmm. So what you will do is, if there is no one, suppose there is no one available in the inventory department. So the person from sales department asks for emergency access to check the inventory so that he can go forward with the sale. Mm-hmm. Provide his client the uh, inventory, whatever item the company is selling. Okay. Okay. Am I clear this far? Yes. Yeah. All right. So this is the reason for using emergency access management. Mm-hmm. Now it says purpose and functionality. EM allows user to take responsibility for tasks outside of their normal job function. Like I said, sales Mm-hmm. department wants to access Mm-hmm. inventory department outside of of their normal job function. Now, it allows temporary access for users when assigned with solving problems, giving Mm-hmm. them provisionally broad but regulated access. Now, this broad and regulated access means Mm-hmm. the user will be given emergency access. Sales department will be given emergency access. Okay. Mm-hmm. Now he have many options. If he want, he can steal something from inventory as well. But Okay. what happens is all his actions are monitored. Mm-hmm. Okay, logs are created and monitored. uh, और मैंने आपको बताया था मिटिगेशन में कि मिटिगेशन में वीकली या मंथली या जो उसको लॉग चेक करना पड़ता है कंट्रोलर को और उसको अप्रूव Mm-hmm. करना होता है, राइट? Right. राइट। इसमें आई थिंक इट हैपेंस डेली or Mm-hmm. hourly basis as well. Okay. Okay. Hourly or I think, well, actually it happens at the end of the day. Okay. Mm-hmm. That he will get an email and uh, yeah, as soon as the emergency access user, firefighter user log out, the logs will be generated and sent to the controller. He will Mm-hmm. approve it. Unless, Okay. okay, if he doesn't approve it within the time limit, then Mm-hmm. the report is forwarded to the supervisors or administrator here, who Mm-hmm. will who will then ask the controller, why haven't you approved it?
Okay. ओके, मतलब एक इसमें 3 यूजर्स मेन होते हैं। सबसे पहले होता है एडमिनिस्ट्रेटर। Okay. ओके, दूसरा Mm-hmm. होता है ओनर। तीसरा होता है मॉनिटर, मॉनिटर और कंट्रोलर। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर, तीनों अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं? देखो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, बट यूजुअली इसको इमरजेंसी एक्सेस मैनेजमेंट में अलग अलग रखा जाता है। ओके, मतलब कि एक तो जो एडमिनिस्ट्रेटर तो जो बना के देगा वो हो जाएगा जैसे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वाले, या राइट, दैट्स करेक्ट। एंड जिसको मिला है, और एक वो कंट्रोलर वो हो जाएगा, एंड जिस जो मॉनिटर करेगा वो वो कंट्रोलर हो जाएगा। ओके, एंड जिसको मिला वो ओनर हो जाएगा। जिसको मिला वो नहीं, वो तो यूजर होता है। जिसको अच्छा हाँ, वो तो जो अप्रूव करता है, मतलब जैसे तुमने, यू आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, तुमने हम्म रिक्वेस्ट की कि मुझे इमरजेंसी एक्सेस चाहिए, फाटा आईडी चाहिए, ठीक है। हम्म अब वो रिक्वेस्ट जाएगी तुम्हारे लाइन मैनेजर के पास, वो अप्रूव करेगा, हम्म फॉरवर्ड करेगा ईएम ओनर के पास, ओनर के पास, ठीक है। हम्म याद रहे, पूरे जीआरसी में जब भी ओनर आता है, इट इट मींस ही इज द वन हु अप्रूव्स ओके असाइनमेंट। कंट्रोलर मींस ही इज द वन हु इज चेकिंग द लॉग्स, हम्म चाहे वो रिस्क में हो, चाहे मिटिगेशन में हो, चाहे इमरजेंसी एक्सेस मैनेजमेंट में हो। हम्म ओके, रिमेंबर दिस, ओके हु अप्रूव्स, कंट्रोलर हु चेक रिव्यू द लॉग, एंड एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं, बट एडमिनिस्ट्रेटर हम ही लोग होते हैं यूजुअली। ओके, हम्म ओके बट या वो क्लाइंट में भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है। हम्म सॉरी अबाउट दैट। या नो इशू। सो what happens is temporary access will be monitored and reviewed by the application। मतलब जो जो हम लोग फाटा आईडी आईडी यूजर को दी गई है, वो मॉनिटर होगा और उसके हम्म लॉग जनरेट होंगे, उसको फाटा, ठीक है। ईएम प्रोवाइड द एबिलिटी टू मैनेज एंड यूटिलाइज फाटा एक्टिविटीज सेंट्रली फ्रॉम द एक्सेस कंट्रोल एप्लीकेशन। मतलब जो जीआरसी एप्लीकेशन है, उसके थ्रू हम लोग फाटा आईडी को किसी भी सिस्टम पे सेंट्रली जो है वो कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर हम्म एग्जांपल, जब मैं जीआरसी बता रहा था तो बताया था आपको कि दो तीन सर्वर, देयर आर थ्री सिस्टम, सिस्टम वन, सिस्टम टू, सिस्टम थ्री। दे ऑल हम्म विल बी कनेक्टेड टू सेंट्रल जीआरसी सिस्टम। ओके, यस so EM is part of GRC, so it is available centrally for all the system. Anyone can use it. ओके Okay, the log files will be distributed to controller and owner by workflow for additional approval. Additional approval owner के पास तब जाता है जब कंट्रोलर टाइम पे उसको अप्रूव नहीं देता, हम्म ठीक है, तो ओनर के ओके पास जाएगा। हम्म अंडरस्टूड ओके ना? कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं ओके, सी, मैं ये बता दूं, सपोज यू हैव टू मैनेजर्स। ओके ओके, यूजुअली ईएम अप्रूवल कंट्रोलर्स क्लाइंट्स अपने एंड पे देता है, अपने ऑफिस के लोग को देता है, बट सब वी आर जस्ट टेकिंग एग्जांपल। हम्म तो यू हैव टू मैनेजर्स अवेलेबल, टू सीनियर मैनेजर्स अवेलेबल। नाउ ओके बोथ ऑफ देम विल हैव द रोल टू बी अ कंट्रोलर एंड द ओनर। लेकिन जब, हम्म लेकिन कोई भी एक फाफाटा आईडी जैसे है, जो कि तुमको जैसे हम्म आसान की जाएगी, वो फाफाटा आईडी, उसका हम्म कंट्रोलर एक मैनेजर रहेगा, ओनर दूसरा मैनेजर रहेगा। ओके ये चीज समझ में आ गई? हाँ गुड। तो एक कंट्रोलर रहेगा, ओनर रहेगा, कैपेबिलिटी दोनों के पास है कि वो दो कुछ भी बन सकता है। तो वो हम्म डिसाइड करते हैं आपस में कि कौन कंट्रोलर रहेगा, कौन अप्रूवर रहेगा, हम्म ओनर रहेगा। और वो जो जब असाइनमेंट होती है तो जो ये चीज पहले से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ताकि कोई बाकी बाद में कोई कंफ्यूजन ना आए। हम्म नाउ डिफाइनिंग यूजर्स, कौन कौन से यूजर्स यूज होते हैं? हम्म ओनर ऑफ द आईडी। ओके ओके, इसमें एक और यूजर होता है एडमिनिस्ट्रेटर, लाइक अस। हम्म ओके, बट ईएम का इसमें जो आई थिंक इन्होंने जो ईएम का एडमिनिस्ट्रेटर मेंशन नहीं किया है, सो
ओनर ऑफ द आईडी, मतलब एक हम्म फाफाटा आईडी बनी, उसका एक ओनर रहेगा। हम्म कंट्रोलर, जो कि उसको उसके लॉग्स रिव्यू करेगा। एंड यूजर, हु विल यूज द फाफाटा आईडी फॉर एक्स्ट्रा एक्सेस। ओके। ठीक, ये तीन मेन होते हैं। हम्म इंपॉर्टेंट रोल्स एंड टर्म्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। सॉरी, इंपॉर्टेंट रोल्स एंड टर्म्स। फायर फाइटर, a business user requiring emergency access. For example, if you want extra access, suppose Monica wants extra access, so he will be हम्म the firefighter. Okay. हम्म Another one is firefighter ID, जो कि आपको आपको ग्रांट की जाएगी। और हम्म फायरफाइटर आईडी एक्चुअली दो टर्म में होते हैं। ठीक है, रो, रोल बेस्ड एंड आईडी बेस्ड। ओके। ओके। नाउ, रोल बेस्ड में क्या होता है, आपके अकाउंट में एक रोल ऐड कर दिया जाता है। आपका जो नॉर्मल यूजर आईडी है, हम्म ठीक है, वो ऐड कर दिया जाता है। और मतलब उसमें एक रोल ऐड हो जाता है जो कि 2 दिन के लिए, मतलब जो भी वैलिडिटी जो है प्रोवाइड की गई है, 2 दिन या 4 दिन, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, उतने दिन के लिए हम्म एक्टिव रहेगा आपके अकाउंट में। और जब तक वो ओके वो रोल आपके अकाउंट में रहेगा, तब तक आपका अकाउंट यूजर, सुपर यूजर या फाफाटा हम्म आईडी माना जाएगा। ओके। ओके। दूसरा होता है आईडी बेस्ड सिस्टम। उसमें क्या होता है कि सिमिलर टू योर अकाउंट, जैसे एक यूजर अकाउंट बनता है, एक फाफाटा आईडी अकाउंट बनता है, हम्म जिसमें स्पेशल, जिसमें सारे फाफाटा आईडी से रिलेटेड रूल्स रहते हैं। अब हम्म वो आपको दे दिया जाएगा। और जब आपको ओके। ग्रांट किया जाएगा, तो फिर आप अपने अकाउंट से लॉगिन नहीं करेंगे, आप उस फाफाटा आईडी के अकाउंट से लॉगिन करेंगे 2 दिन के लिए। हम्म ओके। 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 सो ये दो दो तरह के होते हैं, तो इसलिए फाफाटा आईडी के आगे नहीं लिखा, सिंपल सी बात है। जिसके पास वो रोल, या तो आपको चाहे आईडी मिलेगा या तो आपको रोल मिलेगा, बट हम्म यू विल बी द सुपर यूजर। ओके यू विल हैव द फाफाटा आईडी। ओके। ओके डाउट? ओके। ओके ओके, या सॉरी, अच्छा मैंने देखा नहीं। ओके, जो फाफाटा आईडी के आगे जो उनको लिखना था, उन्होंने थर्ड पॉइंट में लिख दिया है। फाफाटा हम्म आईडी, अ यूजर आईडी विद एलिवेटेड प्रिविलेजेस। हम्म ओके। नाउ, हम्म this is the T code. For example, if you have to log into फाफाटा आईडी, ओके, आपको फाफाटा आईडी मिल गई। अब आपको फाफाटा आईडी में लॉगिन करना है। आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, सैप सैप एसएपी सिक्योरिटी ओपन करेंगे, और टी कोड, ये वाला टी कोड रन करेंगे, GRAC_SPM। ठीक है, जीआरसी में अपन टिक कोड कहाँ लगाते हैं? जीआरसी में नहीं, एसएपी सिक्योरिटी में। ओके ओके। जैसे वही मैं बोला, आप एसएपी सिक्योरिटी ओपन करेंगे और उसमें ये टी कोड रन करेंगे। जैसे ही आप ओके। इसको एग्जीक्यूट करेंगे टी कोड को, यू विल गेट द ऑप्शन टू लॉग इन। अगर आपके पास रोल असाइन है, तो आप अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे। अगर आपको आईडी बेस्ड यूज किया गया है, तो आपको फाफाटा आईडी का लॉगिन पासवर्ड दिया जाएगा, आप उसका यूज करेंगे। ओके। ओके। नाउ, फिफ्थ वन इज द फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग मीन आपको फाफाटा आईडी मिल गई, नाउ यू आर वर्किंग यूजिंग फाफाटा आईडी। ओके। सो फुल एक्ट while you are using फाफाटा आईडी, उसको हम कहते हैं फायर फाइटिंग। ओके। ओके। कंट्रोलर review and approves, yeah, reviews and approves the log file generated by the फाफाटा। हम्म Here it says if necessary means, depending on the organization। क्योंकि हम्म कुछ ऑर्गेनाइजेशन करती हैं कि जैसे ही फाफाटा आईडी लॉग आउट करेगी सिस्टम से, लॉग जनरेट होगी, हम्म उसके बाद पहुंचेंगे, उसको रिव्यू करके उसे एक्सेप्ट अप्रूव करना होता है। कुछ में ओके। होता है कि जरूरी नहीं है कि जो वो अप्रूव करे, बाद जो तुरंत चेक, तुरंत करे, बाद में भी कर सकता है। ओके। ओके।
Then owner, a user responsible for the FAFATA ID and assignment the controller of the FAFATA. Means ओनर क्या करता है, सपोज मोनिका ने जो है फाफाटा आईडी रिक्वेस्ट की, तो हम्म। ओनर उसको रिव्यू करेगा, रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा और एक कंट्रोलर लगाएगा, मतलब एक कंट्रोलर असाइन करेगा, जो भी कंट्रोलर होगा, कि ताकि वो आपके हम्म। लॉग रिव्यू करे. ओके. ओके। But yeah, this is the information. But in practical world, what happens is, जब हम लोग फाफाटा आईडी बनाते हैं या कुछ करते हैं, तो अप्रूवर्स एंड ओनर्स पहले से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं. सपोज फाफाटा आईडी 1 बनाई, फाफाटा आईडी 2 बनाई, तो दोनों के लिए हु विल बी द ओनर, हु विल बी द कंट्रोलर, पहले से डिसाइडेड रहता है. तो ओनर को बस हम्म। चेक करना पड़ता है रिक्वेस्ट को और अप्रूव करना पड़ता है. एज सुन एज ही approves it, the controller is already assigned to the formatter. Okay. Give me a sec. Give me a minute. Monica, am I audible? यस यस। All right. So I think the important rules means this is clear. This part. यस। All right. Then फाफाटा एप्लीकेशन टाइप, जो मैंने आपको आईडी बेस्ड रोल टाइप रोल बेस्ड बता रहा था. ओके. हम्म। So this is it. ID based फाफाटा application, role based फाफाटा application. ओके. तो ये हम ओके। लोग सिलेक्ट कैसे करते हैं, जो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर नहीं बताया था SPRO में जाके, यस। उसमें पैरामीटर 4000, उस पर हम लोग सिलेक्ट करते हैं आईडी बेस्ड. हम लोग ऑर्गेनाइजेशन आईडी बेस्ड यूज कर रही है या रोल बेस्ड, वहां पे हम लोग चेक करते हैं. अगर हम लोग वहां पे 1 है आईडी बेस्ड, 2 है तो रोल बेस्ड. अंडरस्टूड. ओके. और जब इमरजेंसी ऐसे मैनेजमेंट सेटअप होता है, तो दोनों में से कोई एक ही तरह से सेटअप कर सकता है, या तो आईडी बेस कर सकता है या तो रोल बेस कर सकता है. एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यस। व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट आईडी बेस एंड रोल बेस्ड, कि हम राइट। लोग एसपीआरओ में पैरामीटर 4000 पे सेलेक्ट करते हैं आईडी बेस या रोल बेस्ड, और दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट करते हैं. जब हम लोग जो है सेटअप करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, तो दोनों में से कोई एक ही सेटअप कर सकते हैं. ओके. बाद में बाद में अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, तो या वी चेंज इट, वी सेटअप अगेन, वी कैन डू दैट, बट यूजुअली होता नहीं है. और प्रैक्टिकली रिमेंबर्स, हम रोल बेस्ड फाफाटा एप्लीकेशन यूज होता है. ओके. हम्म। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फाफाटा रोल बेस्ड यूज होता है. ओके. ओके। नाउ, so it's simple. What server package means, main application runs in the JRC server, and हम्म। using NWPC portal, assignment can be done. Like you have requested FAFATA ID, so it can be assigned to your account using NWPC portal only. हम्म। Okay. Provisioning of the emergency access can also be done via access request or रिक्वेस्ट। workflow. मतलब ओके। usually it is done by via workflow in the हम्म। organization, but normal ticket system यूज कर सकते हैं उसमें. ओके. ओके। नाउ प्रोसेस क्या है. फाफाटा access is done centrally using the GRC system. हम्म। Yeah, one more thing, Monica, there are हम्म। two types of systems as well. एक होता है ओके। सेंट्रल, मतलब हम्म। इमरजेंसी जीआरसी पे ही जो है, जीआरसी को एज अ सेंट्रल सिस्टम मान के बाकी सब सिस्टम कनेक्ट रहते हैं, तो जो उसमें हम लोग उसको यूज करते हैं. एक एक सिस्टम वो हो गया. दूसरा सिस्टम क्या हुआ, जीआरसी से सिस्टम कनेक्ट रहते हैं, हम्म। बट कुछ ऑप्शंस जीआरसी सिस्टम पे अवेलेबल रहते हैं. बाकी पूरा जो है जो भी इमरजेंसी एक्सेस मैनेजमेंट का सेटअप होता है, वो अलग अलग सर्वर पे इटसेल्फ होता है. मतलब जैसे मैं सॉरी सिस्टम पे इटसेल्फ होता है. सपोज थ्री सिस्टम 1, 2 and 3 आर कनेक्टेड टू जीआरसी, तो स्मॉल पार्ट will be on GRC system. Other most important parts will be on system 1, system 2 and system 3.
ओके। ओके। तो इस सिस्टम को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब सेंट्रलाइज नहीं, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। इट इज डिवाइडेड इनटू ऑल अदर सिस्टम्स। ओके। ओके। तो दो तरह के होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली सेंट्रलाइज्ड रोल बेस्ड फाफाटा आईटी सिस्टम यूज किया जाता है। हम्म। ओके। ऑलराइट। तो ये वही बता रहा है प्रोसेस क्या है। फाफाटा एक्सेस इज डन सेंट्रली यूजिंग जीआरसी सिस्टम। वी लॉग इन टू द जीयूआई। जीयूआई मीन, जब जीयूआई की बात हो रही है मतलब सैप सिक्योरिटी वाला जो सॉफ्टवेयर था उसकी बात हो रही है। ओके। ओके। वहां पे हम लोग टी कोड एग्जीक्यूट करते हैं, जीआरएसी अंडरस्कोर एसपीएम। लॉग इन पे क्लिक हम्म। करते हैं, और जो भी यूजर अकाउंट डाल के उसे लॉग इन कर लेते हैं। ओके। ओके। ऑलराइट। नाउ हम्म। व्हाट आर द प्लगइन सिस्टम, व्हाट आर द प्लगइन्स। प्लगइन्स आर लाइक, जो प्लग होते हैं नॉर्मल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगाते हैं कनेक्ट करने के लिए। सो हम्म। दिस इज these are that's the same plug here, plug in. We just plug in into the switchboard, and for that we need plug in a component for EM for plugin. Okay, it is done by the basis team. Also, an RFC connection to transfer information from GRC to other systems. RFC हम्म। connectors are used. Okay, ओके। prerequisite क्या है? We have to create users and roles as needed. यूजर्स एंड रोल हम लोग को ओके। ऊपर दिया गया था, ये सारे हम्म। हैं। दे विल बी ओनर, कंट्रोलर, फारफाटर एंड फारफाटर आईडी। ये चार चीजें हम, ये चार या सारे ये यूजर्स असाइन करने होते हैं और उनको रोल असाइन करने होते हैं उन यूजर्स को। ओके। वंस डन, देयर इज अ बैकग्राउंड जॉब कॉल्ड जीआरएससी रोल आरईपी यूजर सिंक। हम्म। ओके। तो इसको इट एक्ट्स एज अ सिंक्रोनाइजेशन जॉब। इट इज अ सिंक्रोनाइजेशन जॉब जो कि हम लोग रन करते हैं। ऑलराइट। ओके। वंस डन, now it is saying we are using centralized firefighter overview and prerequisites. Okay. ओके। Now, what is the overview? EAM provides a centralized console through which firefighter can log into different system for हम्म। firefighting. Suppose सेल्स सेल्स के यूजर ने इमरजेंसी एक्सेस मैनेजमेंट की एक्सेस मांगी। हम्म। अब उसे चाहिए क्या? उसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक्सेस चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी, क्योंकि इन्वेंट्री में कोई दूसरा ऑथराइज पर्सनल नहीं है। साथ हम्म। में उसको सेल्स, सॉरी, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एक्सेस चाहिए। वाई? सो दैट ही कैन कंफर्म द मेक द परचेज or sell the purchase for the organization, because there is no one authorized to do it. So he have requested emergency access. तो यहाँ पे हम्म। दो सिस्टम कनेक्ट हुए हैं। सेल्स का तो वो यूजर है ही, उसके अलावा उसको एक इन्वेंट्री और एक क्या बोलो, हाँ, अकाउंट्स। इन दो सिस्टम्स की भी उसको एक्सेस मिलेगी। ओके। अब वो तीनों ओके। सिस्टम में लॉग इन कर सकता है यूजिंग जीआरसी पोर्टल। हम्म। ठीक। दिस इज ओके। द एक्चुअली बेनिफिट फॉर ऑफ अ सेंट्रलाइज सिस्टम। अगर ये हम्म। डिसेंट्रलाइज होता तो उसको पहले लॉगिन करना पड़ता इन्वेंट्री में, फिर लॉगिन करना पड़ता शेयर्स में, फिर अकाउंट्स हम्म। में। तीनों सिस्टम में अलग से लॉगिन करना पड़ता है डिसेंट्रलाइज के लिए। लेकिन सेंट्रलाइज ओके। पार्टनर है तो वो सिर्फ जीआरसी में लॉगिन करेगा और तीनों सिस्टम को एक्सेस कर लेगा। हम्म। ओके। ओके, सेम थिंग नाउ।
since we are using centralized firefighter, so here are the requirements. Centralized, yeah, क्या है? Application type is one for ID based firefighting. ठीक. ओके। देन हम लोग उसमें क्या कहते हैं, हाँ, पैरामीटर सेटअप करते हैं एसपीआरओ से, एसपीआर के थ्रू जाके. हम्म। ओके. वहां पे हम लोग यहाँ पे बताया कि हम लोग आईडी बेस्ड फाफाटी यूज कर रहे हैं. रोल बेस्ड नहीं, हम्म। आईडी बेस्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे. सेंट्रलाइज आईडी बेस्ड, तो सेंट्रलाइज के लिए वन सेलेक्ट किया. पैरामीटर 4000 है. नाउ दिस इज द डिफॉल्ट रोल. ओके. सैप जीआरसी एसपीएम फाफाटर. You can copy and paste it as well. So हम्म। this default rule is used in the parameter ID 4010. Okay. ये ओके। इंटरव्यू में भी पूछा जाता है. तो 4010 में आपको सैप जीआरएससी एसपीएम फाफाटा रोल असाइन कर देना है. हम्म। लेट मी से. ओपन. बस स्लाइड शेयरिंग खोलना था. सॉरी, गलत चीज खोल दी थी, ओपन कर दिया था. या ओके. अगर सिस्टम का स्क्रीनशॉट तो नहीं है यहाँ पे. हम्म। यहाँ पे दिखाया गया, देखिए. ईएम कॉन्फ़िगरेशन एसपीआरओ में जाते हैं. गवर्नर इज कंप्लाइंस, एक्सेस कंट्रोल, मेंटेन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स. ओके। और फिर हम लोग यहाँ पे सेटअप करते हैं. दीज आर द पैरामीटर आईडीज. 4000 में हमने वन सेलेक्ट किया. हम्म। ओके. यहाँ पे मैंने जो अभी रोल नेम दिया था, ये रोल नेम. यहाँ पे उन्होंने कस्टमाइज रोल नेम किया है. सेम सेम है, सेम पर्पज है, बट इट कैन बी कस्टमाइज एज वेल. तो यहाँ पे, so दिस इज द डिफॉल्ट रोल नेम. दिस इज द कस्टमाइज रोल नेम. ओके. ना हम्म। 4001 पैरामीटर में आप देख सकते हैं कि वैलिडिटी हम लोग असाइन करते हैं. यहाँ पे 30 days दिया है, बट यूजुअली वी यूज 2 days बाय डिफॉल्ट. ओके. हम्म। ऑल राइट. सो ये सब चीजें हम लोग प्रीरेक्विजिट कर देते हैं. हम्म। अच्छा, यहाँ पे धीरे रखा है, सॉरी. नो नो. ऑल राइट मोनिका, आगे की चीज मैं कल कल शेयर करूंगा. ऑल राइट.